السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ وصلی وسلم علی رسولنا ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی ترجمہ اور تفسیر، اس کی آج آیہ نمبر 11 اور 12 پڑھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا واو کا مطلب ہے اور، اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو یا ان سے۔ یہ دیکھیں نا، قیلا ہم اردو میں بولتے ہیں قول، قول کا مطلب ہوتا ہے کہنا، بات۔ تفسدو اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فساد، اردو میں ارض بھی استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں ارض و سما کے مالک، جملے کے اندر ارض و سما کے مالک ایک جملہ اردو کا استعمال ہوتا ہے اس میں۔ مصلحون، یہ قالو میں بھی قول لفظ نظر آ رہا ہوگا آپ کو، اور مصلحون میں لفظ اصلاح نظر آ رہا ہے آپ کو، سواد لام ہے۔ تو یہ سارے کے سارے الفاظ جو آپ کے سامنے ہائی لائٹ کیے ہیں، یہ اردو میں کسی نہ کسی طرح سے مستعمل ہیں، استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ اس میں مفسدون میں فساد اور یشعرون میں شعور، یہ وہ لفظ ہیں جو اردو میں کسی نہ کسی طرح سے مستعمل ہیں۔ ترجمہ کر رہے ہیں وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو، لا نہ، تفسدو تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالو تو وہ کہتے ہیں، انما نحن بے شک ہم تو، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا خبردار، انہم یہ دو ہیں، انہم ہم المفسدون، تو معنی کے اندر حسر پیدا ہوگی، تاکید ہوگی۔ انہم بے شک، وہی، المفسدون فساد کرنے والے ہیں، ولیکن اور لیکن، لا نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، اور لیکن نہیں وہ شعور رکھتے۔ تو یہ جو آیت نمبر 11 اور 12 ہے، اس کی اندر اللہ رب العزت نے منافقین کی دو خصلتوں کا ذکر کیا ہے ان دو آیات کے اندر۔ اصل میں تو یہ آیت جو ہے اس کے ساتھ ہی ہے، اس کے اندر دو خصلتوں کا ذکر ہے۔ ایک خصلت یہ ہے زمین میں فساد کرنا، اور دوسری خصلت ہے کہ فساد کرنے کے بعد پھر ڈٹ جانا کہ ہم فساد نہیں کر رہے بلکہ ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ تو ایک جو خصلت ان دو آیات کے اندر، پہلی خصلت جو ہے وہ ہے فساد فی الارض، زمین کے اندر بگاڑ پیدا کرنا، زمین کے اندر فساد کرنا، یہ منافقین کی خصلت ہے۔ اور جب اللہ رب العزت نے یہ جو بگاڑ ہے زمین کے اندر، یہ جو فساد ہے، اصل میں یہ اللہ کی نافرمانی سے آتا ہے۔ زمین کے اندر ہونے والا ہر بگاڑ اور ہر فساد، اس کی وجہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ جب معاملات اللہ کی فرما برداری کے مطابق ہوں، زمین کے اندر بگاڑ آتا ہی نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت سورہ الروم میں فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس
लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, कि अल्लाह फरमाते हैं ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास, कि खुश्की और तरी पर, पानी में और ज़मीन पर फसाद ज़ाहिर हो गया, खराबी पैदा हो गई। क्यों हुई? बिमा कसबत अयदीन नास, लोगों के हाथों की कमाई की वजह से। तो लिहाजा मुनाफिकीन फसाद फिल अर्ज करते हैं, और यह फसाद फिल अर्ज अल्लाह की नाफरमानी से होता है। और दूसरा जो जो खसलत बयान हुई है इस आयत के अंदर, वो है कि फसाद करने के बाद इस बात पर डट जाते हैं कि हम इस्लाह करने वाले हैं, अपने फसाद को इस्लाह का नाम देते हैं। उस जमाने में भी क्योंकि दिल के अंदर कुफर है, कुफर को छुपाए हुए हैं, तो कुफार के साथ दोस्ती करते थे, मुसलमानों के राज कुफार को बतलाते थे, और इसी तरह इस्लाम के अकायद और अहकामात पर इतराज करते थे। और जब उनसे कहा जाता था कि अपने इन अमाले बद से बाज आ जाओ, तो कहते थे हम इस्लाह कर रहे हैं, और फिर इस बात पर डट जाते थे कि हमारा इस्लाम के अहकाम और अकायद पर इतराज करना, हमारा कुफार के साथ दोस्ती करना और उनको मुसलमानों के राज बतलाना, ये हम इस्लाह के इरादे से कर रहे हैं, हम खराबी के इरादे से नहीं कर रहे। और आज के जमाने में भी मुसलमान कलमा पढ़ने वाले वो इस तरह के काम करते हैं। अल्लाह के साथ शिरक को औलिया का अदब करार दे दिया, बिदआत को तकर्रुब इल्लाह का जरिया करार दे दिया, गाने बजाने को, ढोल ढमक्के को कवाली का नाम दे दिया, रूह की गजा का नाम दे दिया, जिनाकारी को, बदकारी को हलाला और मुता का नाम दे दिया। इसी तरह औरतों की खानदानी मनसूबा बंदी करके जो है वो इसको मुआशरे की इस्लाह का नाम दे दिया। फिर जो है वो मुआशरे के अंदर बेहयाई और बदकारी को फैला के औरतों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ का नाम दे दिया। तो ये सारे काम आज के मौजूदा मुआशरे के अंदर हो रहे हैं, ये सारे के सारे निफाक के मजहर हैं, निफाक की निशानियां हैं, और इनको बना संवार के, सजा के, खूबसूरत करके पेश किया जाता है। खुशनुमा नाम इनके लिए जाते हैं ताकि देखने वाले के सामने इनको मुज़य्यन करके पेश किया जा सके, जबकि हकीकत में सारे के सारे काम जिस तरह उस जमाने में मुनाफिकीन करते थे, उसी तरह आज के जमाने में इनको खुशनुमा बना के पेश किया जाता है। हकीकत में यह निफाक के मजहर है। तो लिहाजा मौजूदा जमाने में ये जो काम आपके सामने, और भी कई सारे काम हैं, ये जिनके नाम आपके सामने लिए हैं, ये सारे के सारे काम असल में निफाक के मजहर हैं। आखिर में अल्लाह फरमाते हैं वलाकिन ला यशऊरून, और लेकिन वो शऊर नहीं रखते। जब आदमी अपनी इंसान के दिल के अंदर कुफर दाखिल हो जाता है, निफाक दाखिल हो जाता है, तो फिर उसको अच्छाई और बुराई का फर्क खत्म हो जाता है। फिर वो अच्छे को बुरा समझना शुरू कर देता है और बुरे को अच्छा समझना शुरू कर देता है। जब आदमी निफाक की बीमारी में मुब्तला हो जाता है, अच्छाई और बुराई का फर्क खत्म हो जाता है, अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा समझने लग जाता है, उसको पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह फातिर की आयत नंबर 8 के अंदर इसी बात का जिक्र किया है कि उनके अमाल, उनके सामने अमाले बद इस कदर मुज़य्यन कर दिए गए हैं कि वो उन अमाले बद को अच्छा समझने लग जाते हैं। ये सूरह फातिर की आयत नंबर 8 के अंदर है। तो लिहाजा ये भी इस बात की वजाहत है कि वलाकिन ला यशऊरून, उनको शऊर ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि वो जो खराबी कर रहे हैं असल में ये खराबी है जिसको वो इस्लाह का नाम दे रहे हैं, लेकिन वो पहचान करने की सलाहियत अच्छाई और बुराई की उनके अंदर से खत्म हो चुकी है। लिहाजा इसलिए फरमाया वलाकिन ला यशऊरून, वो शऊर नहीं रखते। तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह समझने के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।